मैं कैप्टन मीरा दवे, वेटरन इंडियन आर्मी ऑफिसर, मंच पे आज के हमारे स्पीकर्स और मॉडरेटर्स को आमंत्रित करना चाहूँगी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ श्रीमती रेखा शर्मा मैम, मिस सीनू जोसेफ मैम, प्लीज़ इफ़ यू कैन कम ऑन द स्टेज, Esther Johnson ma'am and Shefali Vaidya ma'am, who would be moderating the session. A loud round of applause for our speakers getting on the stage, please. Thank you, ma'am. Ms. Rekha Sharma ma'am is the chairperson of National Commission for Women. She has been a vocal advocate of gender sensitization of police personnel since they are the first point of contact for victims. मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर किंजल देसाई जी को मंच पे आके रेखा शर्मा मैम का स्वागत करें। तालियों से हमारे स्पीकर को अभिवादित करें। Esther Johnson, that is what Esther Johnson is very well known as. Esther Dhanraj, also known as Kamakshi, is staunch upholder of Sanatan Dharma. She holds a master's degree in English literature from Osmania University, India, and research-oriented master's degree in divinity from Luther Rice University, Georgia, United States of America. Esther Ji emphasizes the need for Indians to become courageous and to raise rational questions about any faith that they follow, so that they do not end becoming blind believers and ultimately victims of blind faith. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपूर्वा को मंच पे आके एस्टर जी का सम्मान करें। Ms. Seenu Joseph Ji is a menstrual educator, an author, a TEDx speaker, and one of the pioneers of the menstrual health movement in India. Her work on menstruation has been unique in its efforts to unearth the ancient science behind native menstrual practices and bring forth the Bharatiya perspective on menstruation. I am sure as I was enlightened by her amazing videos on this subject, our audience would also have been while watching the same. I would request Deepika Doot ji to come on the stage and felicitate Ms. Seenu Joseph ji. The moderator of today's session, and she's also our guest speaker in the next session, Mrs. Shefali Vaidya ji, which I love to call as Shefali Tai ji. And she's a Pune-based freelance writer, newspaper columnist, and media personality. She is a mass communication master's degree holder. She is a multilingual author who writes in Marathi, English, Konkani, and Spanish, among other languages. She has one of the largest social media followers, and I personally adore you, Tai, for the love of the saris you have, as I love wearing saris a lot. I would request Nilesh ji to please come on the stage and felicitate Shefali Tai ji. शेफाली ताई, आप सत्र की शुरुआत कीजिए। थैंक यू।
हेलो, नमस्कार। बड़ा मुश्किल होता है भोजन के बाद के सत्र का संचालन करना, क्योंकि सबको नींद आने लगती है। लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में इस सभागृह में अभी उपस्थित हैं। विषय तो बहुत इंटरेस्टिंग है, नारी एट 2047 इन भारत। जब हम बात करते हैं नारी की, तो हम बात करते हैं 50% पॉपुलेशन की भारत के, जो नॉर्मली लोग सोचते नहीं हैं। मतलब पीपल सॉर्ट ऑफ कंपार्टमेंटलाइज्ड। अभी भी देख रहे हैं ना कि पूरे पैनल में सिर्फ 4 नारियां ही हैं, लेकिन नारी के विषय में बात करना, ये सिर्फ नारी का तो ओनस नहीं है ना। मैं चाहती थी कि यहाँ पे एक पुरुष भी हों, क्योंकि नारी के विषय में बात करना सिर्फ नारियों ने बात करना है ऐसा कहीं लिखा नहीं है, बट ये बहुत पैनल में होता है। लेकिन आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं। हर एक का क्षेत्र अलग है, हर एक का एक्सपर्टीज़ अलग है, हर एक का इस प्रश्न की तरफ देखने का नज़रिया अलग है। इसलिए मैं चाहती हूँ इस सेशन कि जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह हो कि हर गेस्ट अपनी बात, अपनी बेसिक पोजीशन जो है वो 5 से 7 मिनट में कहें, और उसके बाद हम डिस्कशन की तरफ मुड़े। मेरी बस आपसे एक ही विनती है कि 5 से 7 मिनट तक ही सीमित रखिएगा, ताकि हर एक को समय मिलेगा। और जहाँ तक हो सके हम पास्ट की बात ना करके हम वर्तमान की बात करें और हम फ्यूचर की बात करें, क्योंकि प्रॉब्लम हमको मालूम है, लेकिन अभी उसका सल्यूशन क्या है। हमको ऐसा, जब भी भारत में नारी के अगेंस्ट कोई क्राइम होती है तो आप जानते हैं कि दूसरे दिन क्या हेडलाइंस आते हैं, रेप कैपिटल ऑफ इंडिया, विमेन आर नॉट सेफ इन इंडिया, इस तरह के हेडलाइंस आते हैं। लेकिन कोई अगर तथ्य में जाके बात करे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है कि सिचुएशन बिल्कुल बदली ही नहीं है या बहुत निराशाजनक है। फॉर एग्जाम्पल 1947 में विमेन की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज ओनली 33 years old. नाउ इट इज़ 70. इट इज़ अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट। लेकिन उसकी बात हम करते नहीं हैं। 1947 में जब सेंसस हुआ था तब सिर्फ 6% महिलाएं अपने आप को लिटरेट बताती थीं। 2011 के सेंसस में ये फिगर ऑलमोस्ट 67% के ऊपर आ गया है। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन भारत प्रगति के पथ पर है। भारत सबके लिए प्रगति के पथ पर है, और नारी के लिए तो बहुत ही प्रगति के पथ पर है। मैं चाहूँगी रेखा जी से आप शुरुआत करें। आप अपनी भूमिका पहले 5 से 7 मिनट में प्रस्तुत करें, उसके बाद एस्तर जी, और उसके बाद सीनू जी, और उसके बाद हम जाएंगे डिस्कशन में, और फिर मैं ऑडियंस के क्वेश्चंस ले लूँगी। नमस्कार सबको। जैसा शेफाली जी ने कहा that one man also should have been here, because unless we involve other 50% to talk about women, we will not be able to improve what we want, the improvement in the society. तो मुझे लगता है पुरुषों को भी भागीदार बनाना बहुत ज़रूरी था इस पैनल डिस्कशन में, क्योंकि आज अगर हम देखें तो एक पुरुष है जो विमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करता, विमेन लेड एम्पावरमेंट की बात करता है। और हमारे देश में जो भी चेंजेस आप पिछले 7-8 साल में देख रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के कारण, जिनका ये कहना है, मैं उनका कोट करती हूँ, एक अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बाय हार्नेसिंग विमेन्स पोटेंशियल इंडिया कैन रियलाइज इट्स विजन 2047. Unless we harness the potential of women, we'll not be able to achieve what we want to achieve in 2047. अगर एक पुरुष ये कह रहा है तो ज़रूरी है कि हम भागीदार बने इस डिस्कशन का। मैं जैसा शेफाली जी ने कहा कि हम फ्यूचर की बात करते हैं और क्या बदलाव आना चाहिए, क्या नहीं है। मेरी सोच में एम्पावरमेंट, एक ही लाइन में मैं बोलूँगी, एक एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट तब तक नहीं होता जब तक महिला अपना डिसीज़न लेने के स्थिति में नहीं होती। जब भी उसके डिसीज़न कोई और लेता है, चाहे बचपन में फादर या बाद में हस्बैंड या ब्रदर,
तब तक वो ट्रू मायने में, सच्चे मायने में एम्पावरमेंट नहीं है। और वो हम कैसे पहुंचाएंगे, इसी की बात करते हैं कि महिला को वहाँ तक कैसे पहुंचाएं कि वो अपने डिसीजंस खुद ले और उन पे डटे रहे। ये बहुत ज़रूरी है, डिसीज़न ले और वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके ले, किसी से डर के ले, वो भी एम्पावरमेंट नहीं है, वो अपने आप ले, वो बहुत ज़रूरी है। डिसीज़न क्यों नहीं ले पाती? एक कारण है सबसे बड़ा, द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी। जो मैं हमेशा बोलती हूँ, जब तक वो हम माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे सोसाइटी का, जो महिला को पुरुष से अलग समझती है, अलग है हम केवल फिजिकली, बाकी किसी चीज़ में नहीं। अभी आपने देखा एक जो हमारी मॉडरेटर वहाँ पे है, वो भी एक महिला है और सेना से आई है। किस चीज़ में महिला अलग है वो अभी तक मुझे नहीं समझ आया, लेकिन जो एक माइंडसेट है जिसके कारण शुरू होता है सारी प्रॉब्लम्स। अब मैं प्रॉब्लम्स इसलिए गिनवाना चाहूँगी क्योंकि हम नहीं चाहते कि 2047 तक वो प्रॉब्लम्स रहें, और हम किस प्रकार से एम्पावर हो ट्रू सेंस में, वो प्रॉब्लम्स को भी बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सोचें कि महिला का परिवार से ही जो प्रॉब्लम शुरू होता है वो डोमेस्टिक वायलेंस, और आज मैं जिस जगह बैठी हूँ राष्ट्र महिला आयोग में, और जो मेरे पास लगभग 30,000 के करीब कंप्लेंट्स आती हैं, 50% कंप्लेंट्स होती हैं डोमेस्टिक वायलेंस की। और ये भी माइंडसेट से ही उत्पन्न होती हैं कि जो पुरुष हैं परिवार के, या महिलाएं भी, मैं कहूँगी माइंडसेट सिर्फ पुरुषों का नहीं होता, माइंडसेट चेंज करना है तो महिलाओं का भी। बहुत जगह जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है महिलाएं भी करती हैं, और हम लोग इसलिए होता है ये क्योंकि ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों हमारी सोच बनती आ रही है कि महिलाएं इस प्रकार कमज़ोर होती हैं, और महिलाओं का भी ये सोच हो गई है कि हम कमज़ोर हैं। आज बदल रहा है, मेरे सामने जो यंग स्टूडेंट्स बैठे हैं वो बहुत कुछ बदल गया है। पिछले कुछ सालों में ही देखेंगे तो मुझे लगता है कि पिछले जो 10 साल में बदलाव आया है, जो अपॉर्चुनिटीज़ महिलाओं को मिली हैं, जो सोच में बदलाव आया है, वो 47 में बहुत कुछ बदल जाएगा। लेकिन उसमें हम सबको काम करने की ज़रूरत है, और वो काम घर से शुरू होगा कि हम उनको इक्वल एजुकेशन दें, अपनी बच्चियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें। मैं हमेशा 3 चीज़ों की बात करती हूँ, इक्वल एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल प्रॉपर्टी, जो हम भूल जाते हैं। जब तक हमारे पास रिसोर्सेज भी इक्वल नहीं होंगे तब तक हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, और रिसोर्सेज में प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मैं माइंडसेट की जैसे बात करती हूँ, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो या रेप हो जो सड़कों पर, या ये कहना कि ये रात को क्यों गई थी रात को बाहर, आज महिलाएं अगर कहीं जगह जगह काम कर रही हैं तो उनको रात को भी सड़कों पे निकलने की ज़रूरत है, और आप उसको ये कह के नहीं रोक सकते कि 3 बजे तुम क्या कर रही थी सुबह के, या 12 बजे तुम क्यों गई थी बाहर। ये हम उसको रोक सकते हैं, और इसमें बहुत बड़ा हाथ हम माओं का होता है, जो हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं अपनी लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ। अगर हम बच्चों को, लड़कों को भी उस तरह से पालें जैसे लड़कियों को पालें, हम सिखाएं उसको डूज़ एंड डोंट्स जो हम लड़कियों को ज़िंदगी भर सिखाते आए हैं। अब टाइम है कि हम अपने लड़कों को भी सिखाएं कि तुमको बाहर निकलकर कैसे बिहेव करना है, तुमको अपनी बहन के साथ कैसे बिहेव करना है, तुमको बाहर लड़कियों के साथ कैसे। अगर वो सुरक्षित रख सकते हैं अपनी बहन को, तो बाहर की लड़की को सुरक्षित क्यों नहीं रख सकते? ये बदलाव लाना पड़ेगा। जहाँ मैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की मैं ज़रूर बात करूँगी, आज महिला, और जब तक वो नहीं होगा, जब तक महिलाएं 50% जो पॉपुलेशन है कंट्री की वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का हिस्सा नहीं बनेगी, वी विल नॉट बी एबल टू रीच वेयर वी वांट टू रीच, एंड दैट इज़ वी वांट टू बी सुपर पावर। एंड हाउ विल वी बी इफ इकोनॉमिकली हम अपनी 50% जनता को दूर रखेंगे, उससे हम उनको कमाने की स्थिति तक नहीं पहुंचाएंगे। मैं छोटा सा एग्जांपल अपनी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन का देती हूँ। आज से पहले और कुछ साल पहले से मुझे लगता है राष्ट्र महिला आयोग सिर्फ इसलिए जानी जाती थी कि कंप्लेंट्स पे काम करती है, लेकिन आज हम उस पे काम कर रहे हैं कि हमारे पास कंप्लेंट्स ना आए। तो ये बदलाव कैसे आया? मैं चाहती हूँ कि हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन होनी नहीं चाहिए, इस तरफ काम करना चाहिए, और वो तब होगा जब वो हम महिलाओं को इन सब प्रॉब्लम से दूर करेंगे। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रही हूँ,
राष्ट्र महिला आयोग ट्रेनिंग दे रही है IIM जैसे इंस्टीट्यूट्स में बच्चियों को जो केवल 10वीं पास भी हैं कि अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकती है। आज से पहले ऐसा नहीं, ऐसी नहीं थी। आज हम डिजिटली उनको एम्पावर कर रहे हैं। और ये मैं बहुत सारे क्लूज़ जो है हमारी अपनी सरकार से लेती हूँ। जो सरकार जो प्रधानमंत्री लाल किले से मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करता है, जो प्रधानमंत्री विमेन लेड एम्पावरमेंट की बात करता है, जो स्किल डेवलपमेंट की बात करता है, जो MSME में महिलाओं को लोन देने की बात करता है, उन्हीं से हम लोग एक क्लू लेकर हमने इतने सारे कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं के लिए डेयरी फार्मिंग में ट्रेनिंग देने के लिए, बच्चियों को जब तक वो अपनी कमाई नहीं कर पाएंगी मुझे नहीं लगता कि वो डिसीज़न ले सकेंगी। जो मैं डिसीज़न मेकिंग की बात करती हूँ वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। और दूसरी एक और बात, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है और उसके लिए भी हम लोग बच्चियों को और जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में है उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो यहाँ बच्ची यहाँ बैठी हैं, मैं उनको कहूँगी कि प्लीज़ कम टू द पॉलिटिक्स बिकॉज देयर द डिसीजन मेकिंग पावर इज़ देयर. So you should be part of decision making. Unless you are part of decision making, we will not be able to reach to that vision which we want to see. Thank you so much. रेखा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने स्पेशली जो एम्पावरमेंट की बात कही, मुझे ये विमेन एम्पावरमेंट जो शब्द है ना वो खटकता है कहीं कहीं, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि स्त्री खुद शक्ति है। शक्ति को कौन एम्पावर करेगा, वो तो खुद एम्पावर्ड है। तो उसको तय करना है कि उसके अंदर के शक्ति स्वरूप को उसको जानना है। कोई और उसको नहीं एम्पावर कर सकता, वो खुद उसमें वो शक्ति है। और जब तक शक्ति नहीं है तब तक शिव भी निष्क्रिय हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो शमिका रवि जी यहाँ नहीं आई आज किसी कारणवश, लेकिन उन्होंने एक स्टडी पब्लिश किया था। तो उस स्टडी में अभी रेखा जी ने बात की, मैं बस 2 सेकंड में ख़त्म करती हूँ। तो उन्होंने बोला था कि साइलेंट रेवोल्यूशन भारत में इसलिए हो रहा है पॉलिसी चेंज की वजह से। हम आज जब सैनिटेशन की बात करते हैं, हर घर टॉयलेट की बात करते हैं, हर घर पेयजल की बात करते हैं, हर घर गैस सिलेंडर पहुँचाने की बात करते हैं, उसकी डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन है? वो घर की नारी है, क्योंकि उसका समय बचता है और उसको सेफ लगता है। एक यूनिसेफ स्टडी ने इस जो घर घर टॉयलेट जो स्कीम है स्वच्छ भारत, उसमें ये प्रूव किया है कि जब घरों घरों में टॉयलेट बनने लगे तो जो घर की नारी थी उसका दिन का 1 घंटा बच गया, क्योंकि उसको हर सुबह जल्दी उठ के अंधेरे में उसको बाहर जाना पड़ता था, वो रुक गया, वो सेफ फील करने लगी। और जब उसको इतना समय मिला तो वो समय अपने बच्चों को दे सकती है, अपने परिवार को दे सकती है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट को दे सकती है। ये भी एक अपने अंदर की शक्ति जगाने का तरीका है, जिसको क्वांटिफाई आज तक बहुत नहीं किया गया है। आप इसके बारे में न्यूज़पेपर्स में बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि हमको बैड न्यूज़ सुनने की बहुत आदत है। अभी मैं एस्तर जी से बात सुनना चाहती हूँ कि उनका इस विषय में क्या मानना है, उनकी भूमिका क्या है। हेलो, थैंक यू शेफाली जी। उससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो I'll be very happy to give my place to a man in the panel and begin this एक नया दौर शुरू करें जहाँ पे women टॉपिक पे men भी शामिल हो और बात करें। So if anybody from the audience, any male is willing to take my seat, I'm happy to give it. But मैं grassroots पे भी काम करती हूँ, तो ग्रास रूट्स एंड रूरल जब भी मैं जाती हूँ, आई वर्क विथ द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अंडर द संघ अम्ब्रेला, एंड मैं हर बार एक ही बात बोलती हूँ कि इट्स अ मैन्स वर्ल्ड। क्योंकि वहाँ पे अगर 300 लोग हैं, उनमें से मैं अकेली औरत होती हूँ। कई बार आई एम द ओनली वन, मेरे साथ और कोई वहाँ पे वॉल्टियर होती हैं जो एक कोने में, बिल्कुल एक कोने में जाके अपनी चाय नाश्ता कर रही हैं। तो इट्स डेफिनेटली अ मैन वर्ल्ड। एंड रेखा जी हैज़ ऑलरेडी स्पोकन अबाउट एम्पावरमेंट एंड विमेंस पोजिशंस इन अदर एरियाज़। मैं ख़ास बात करूँगी इन द स्पेस दैट वी आर टुडे।
मैं इसको हम बोलते हैं इसको धार्मिक सर्कल्स। तो धार्मिक सर्कल्स में भी कहीं भी आपको नारी नहीं दिखेंगे, विमेन बहुत या तो कम दिखेंगे या बिल्कुल नहीं दिखेंगे। तो इसी सिलसिले में एक बार मैं धर्म जागरण की सुप्रीमो दी प्रेसिडेंट ऑफ धर्म जागरण शरद डोले जी से जब मैं बात कर रही थी, तो उनसे मेरी एक ही कंप्लेंट थी कि आप लोग महिलाओं को जो वो वे डिज़र्व करती हैं वो प्लेस नहीं है, जबकि महिलाएं हर एक मुद्दे में बिल्कुल सामने पाई जाती हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी पुलिस स्टेशन जाना होता है केस रजिस्टर करने के लिए, वहाँ पे सबसे पहले पहुँचती है महिलाएं। आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस एंड व्हाट आई हैव विटनेस्ड ऑन द फील्ड। सो महिलाएं पहले पहुँचती हैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए, बाद में आते हैं दी मेल। कभी कोई बैक एंड में सोशल मीडिया की या किसी चीज़ की कुछ जल्द से जल्द एक टैग लाइन कुछ करनी हो तो इट कम्स फ्रॉम अ वुमेन और अ गर्ल फर्स्ट। तो जब इतनी योगदान है तो फोर फ्रंट पे क्यों नहीं है? You won't see any women in the leadership in RSS. So ऐसे RSS के नीचे भी, अम्ब्रेला ऑफ RSS के नीचे भी कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे महिलाएं नहीं होती है। This is not the case with just one organization. There are many धार्मिक organizations, I mean working by धार्मिक organizations, मैं ये कहना चाहती हूँ कि somebody who is working for change, bringing about change in भारत। तो आगे जाके in the next 25 years I would definitely like to see women holding that kind of leadership positions in these organizations that are working to bring about a change. So शरद जी के साथ जब वो बात हुई उसके बाद he immediately organized an event and he went ahead and of course he invited me, but I also got to see so many other youngsters, young women, which I had not seen earlier before that in the events that I attended. In that particular event, there were so many other girls also that I got to see, and he particularly mentioned जो हम हैदराबाद में हमारी जो छोटी सी कॉन्वर्जेशन हुई थी उसकी रिजल्ट है ये इवेंट, एंड दैट आई डेफिनेटली सी एज अ चेंज, एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ चेंज जो हमको आगे जाके देखने का एक उम्मीद कहिए या एक प्रयास करनी चाहिए। ये मेरा दिस इज़ इसी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद एस्टर जी, आपने बहुत अहम बात कही कि जब स्त्री हर क्षेत्र में पुरुष की बराबरी का काम कर रही है तो धार्मिक क्षेत्र में क्यों नहीं? क्योंकि धर्म मतलब जो धारण करता है वो धर्म है, तो उसमें स्त्री और पुरुष का बराबर का रोल होना चाहिए और हमारे शास्त्रों में है भी वैसा, लेकिन वो हमें प्रैक्टिस में क्यों नहीं दिखता और दिखना चाहिए। ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने उपस्थित किया। अभी मैं सीनू जी से उनकी भूमिका जानना चाहती हूँ। सीनू जी विमेन साइंस एंड ट्रेडिशनल वेज में बहुत काम कर रही हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य में भी मैं उनसे उनके विचार सुनना चाहूँगी। धन्यवाद शिफाली जी, आप सबको नमस्कार। मैं शायद शिफाली जी और एस्टर जी के सवालों के जवाब से ही शुरू करती हूँ। भारत के बारे में हम हमेशा सोचते हैं और आगे की बात जब सोचते हैं कि हम बोलते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनना है। विश्व राजा नहीं, विश्वदाता नहीं, विश्व माता भी नहीं, विश्व गुरु। ऐसा क्यों है? गुरु का मतलब क्या है? गुरु वो है जो ज्ञान को प्रकाशित करता है। तो पूरे विश्व में भारत का ये पात्र है कि जो भी विश्व की समस्याएं हैं उसका हल हमारे ज्ञान परंपरा में है। तो जो भी समस्याएं, विमेन सेफ्टी या वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, उन सभी चीज़ों का जो सॉल्यूशन है वो शास्त्रों में है, लेकिन
हम उस सॉल्यूशन को पहचान नहीं पा रहे क्योंकि जो ज्ञान परंपरा है वो खुद खो गई है। मैं 2-3 उदाहरण आपको दूंगी, लेकिन उससे भी पहले धार्मिक व्यवस्था में या संस्थाओं में स्त्री आगे क्यों नहीं है, या फिर हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते? और शास्त्रों में क्या ये कहा कि स्त्री और पुरुष समान है धार्मिक टू प्रिजर्व धर्म? स्त्री धर्म पद्धति नामक एक ग्रंथ है जिसका एक इंटरप्रिटेशन कंची के परमाचार्य, जिसे हम श्री महापेरियावा के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा है। उनकी एक ऐसे में उन्होंने लिखा है कि शास्त्रों में ये कहा गया है, स्त्री मूलम सर्वधर्मम। अगर धर्म की रक्षा करना है तो उसका पूरा उत्तरदायित्व स्त्री पर ही है। इसमें इक्वालिटी की बात नहीं है। स्त्री मूलम सर्वधर्मम। लेकिन इसके साथ एक और विषय है। स्त्री के स्वभाव में ही एक इनहेरेंट जो गुण है उसको हम ह्रीत्वम बोलते हैं। ह्रीम देवी को भी हम ह्रीम ह्रीत्वम बोलते हैं। उसका अर्थ क्या है? शाइनेस। She does not prefer to stand out. पुराणों में एक कहानी है। एक बार नारद जो है, नारद ऋषि, वो शिवजी के पास जाते हैं और शिवजी तो तपस में बैठे हैं। तो शिवजी को देखते हैं और बोलते, हम सब तो जब हम ध्यान करते हैं, तपस करते हैं, तो आपके बारे में सोचते हैं, आप किसके ऊपर ध्यान कर रहे हो? तो शिवजी ने कहा, ये तो बड़ा गुह्य विषय है, मैं नहीं बता सकता, कुछ और पूछ लो, कुछ आपको वरदान पूछना है तो पूछ लो, लेकिन ये सवाल मत पूछिए। फिर तो और भी क्यूरियस हो गए, नहीं नहीं आपको बताना ही है। हु आर यू मेडिटेटिंग अपॉन? हम सब तो आपके ऊपर मेडिटेट, आप किसके ऊपर ध्यान में बैठे, आप क्यों बैठे हो ध्यान में? तो ये बातचीत चलती रही। शिवजी ने कहा, नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ा रहस्य है, मैं रिवील नहीं कर सकता। फिर विष्णु जी आए और कहा, देखिए आपका बहुत बड़ा भक्त है, मान लीजिए, उत्तर दे दीजिए। तो अंत में शिवजी ने कहा, मैं शक्ति के ऊपर ध्यान करता हूँ क्योंकि मेरा अस्तित्व भी उस शक्ति से ही है। इसमें सोचने वाली बात ये है कि ये एक रहस्य क्यों है? हम सप्तमात्रिका की बात करते हैं। कौन है सप्तमात्रिका? हर देवता के पीछे की शक्ति, वो आगे नहीं आती, वो पीछे रहती है। क्यों? क्योंकि वो शक्ति का जड़ है। अगर उसे एक्सपोज कर दोगे तो आप अपने सारे सीक्रेट्स रिवील कर रहे हो। किसी का विनाश अगर करना हो तभी जाके हम सीक्रेट रिवील करते हैं। नारी आगे इसलिए नहीं है क्योंकि शी इज द सोर्स ऑफ द स्ट्रेंथ फॉर द मैन। वही शक्ति का केंद्र है। अगर उसको कुछ हो गया तो वो पुरुष भी अपना काम नहीं कर पाएंगे। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। और सबसे बड़ी बात, आगे के दिनों में अगर कुछ बदलाव मैं देखने की इच्छा करती हूँ तो वो ये है कि हमें ये राइट्स बेस्ड कॉन्वर्जेशंस और फ्रेमवर्क और अप्रोच, ये एक ट्रैप है, इसे समझना है। इट इज़ अ ट्रैप फॉर अस टू एक्सप्लेन द शास्त्रास एंड द स्मृतिस थ्रू द लैंग्वेज ऑफ द वेस्ट, जो हमारे शास्त्रों के पीछे का ज्ञान नहीं समझते। हर एक, जब कोई भारत में महिलाओं के क्या राइट्स थे पूछते हैं, नहीं, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी, बिकॉज वी वर नॉट अ राइट्स बेस्ड सोसाइटी। मनुस्मृति में या स्त्री धर्म पद्धति में जो भी नियम लिखे गए हैं उसका आधार क्या था? सोशल कंस्ट्रक्ट्स नहीं थे, इट वाज बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स।
सबसे जो फेमस केस हुआ शबरीमला का, उसमें महिला के हक, इस विषय को लेकर इतनी बड़ी लड़ाई हुई, लेकिन ये हक की बात थी ही नहीं, ये तो बायोलॉजी की बात थी। अगर मासिक धर्म आयु की महिला किसी भी मोक्षधाम में प्रवेश करती है, चाहे वो शबरीमला हो या कैलाश हो या मानसरोवर यात्रा हो, उसके मासिक चक्र में 100% बदलाव होंगे। उसे पीसीओडी हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, मेनोपॉज हो सकता है, और इसके बहुत सारे एविडेंस है मेरे पास जो महिलाओं ने मुझे लिखे हैं। और मेरा एक किताब है महिलाएं और शबरीमला, विमेन इन शबरीमला, उसमें उसके पीछे के बायोलॉजी लिखा गया है। लेकिन हमारे यहाँ हम इतना, कोई पूछता है द राइट और हम जवाब नहीं दे पाते। इट्स अ ट्रैप। हमारे कोई भी नियम राइट बेस्ड नहीं है, सोशल कंस्ट्रक्ट्स नहीं है, दे आर बायोलॉजिकल रियलिटीज़। ये समझने की ज़रूरत है। और अगर हम इस दृष्टिकोण से मनुस्मृति को पढ़ेंगे, उसमें सभी समस्याओं के हल हमें मिलेंगे। एक उदाहरण देना चाहूँगी डोमेस्टिक वायलेंस की। इसमें हमारे स्मृतियों में क्या लिखा गया है, उसका हल, इस समस्या का हल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले मैं मॉडर्न साइंस की भाषा में बोलूँगी। और एक बात तो मैं कहना चाहूँगी कि अपने ही देश में, अपने ही ज्ञान की परंपरा को हम ऑल्टरनेटिव बोलते हैं, और जो बाहर से आया वेस्टर्न साइंस है उसे मेन स्ट्रीम बोलते हैं। इतना अजीब बात है ना। हमारा आयुर्वेद और चक्र तंत्र ये सब मेन स्ट्रीम होना चाहिए, और एलोपैथी को हमें ऑल्टरनेट बोलना चाहिए। दिस इज़ द फंडामेंटल थिंग। लेकिन साइंस इज़ वन, इतना तो मैं कहूँगी कि साइंस इज़ वन। फ़र्क के सिर्फ हमारे डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग में है। तो आई विल स्टार्ट विद एलोपैथिक अंडरस्टैंडिंग और फिर हम एक लेवल डीप जाएंगे। इट्स अ स्मॉल एग्जाम्पल। ओके, सो आई हैव बीन आस्क्ड टू पॉज, सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी। You know, as a moderator, that hello, as a moderator, that is the most difficult job, to stop a speaker in mid flow of what he or she is saying. But everybody should get a chance to have a discussion. But I will take the discussion forward from what सीनू जी ने बोला। सीनू जी ने बोला कि राइट बेस्ड सोच ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, जो हमें अपने आप को देखने के लिए वो अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। क्योंकि हमारी जो सिविलाइजेशनल सोच है वो हमेशा से ही राइट बेस्ड नहीं, ड्यूटी बेस्ड रही है, कर्तव्यों के ऊपर रही है, अधिकारों के ऊपर नहीं है। और हम ऐसा मानते हैं कि हर व्यक्ति अगर आपका निहित कर्तव्य करे तो फिर किसी को अपने अधिकारों के लिए झगड़ने का समय आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति अगर आपका कर्तव्य करेगा तो किसी का हक छीना नहीं जाएगा, तो किसी को अपने हक के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं बात करना चाहूँगी रेखा जी से, इस्तर जी से और सीनू जी से भी, कि हम देखते हैं कि हमारी जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, खासकर स्त्रियों की, वो उनके लिए फेमिनिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली पूरा का पूरा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट आयात किया हुआ है। और वो उसको, उसके प्रिंसिपल्स लेके वो अपने आप को समझना चाहती हैं, वो अपने आप को देखना चाहती हैं। तो वो कहीं पे मुझे लगता है कि हमारी रियलिटी के लिए वो सही नहीं है, वो गलत है। और उसके लिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, कि जो मास रिजेक्शन है हमारी परंपराओं का, हमारी धार्मिकता का, हमारी सिविलाइजेशनल एथोस का, फेमिनिज्म के नाम पे, तो उसके बारे में हम आगे जाके क्या करें कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ तो चाहिए, हमें विमेन लेड डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन हमें हमारी परंपराओं को सम्मिलित करके ये चाहिए। तो हाउ कैन वी टेक दिस फॉरवर्ड विदाउट लूजिंग साइट ऑफ द पास्ट? मैं कहीं ना कहीं मिडिल पाथ ढूंढने की कोशिश करती हूँ। वेस्टर्न और इंडियन कह के दोनों को एकदम
सेपरेट कर दिया जाए, वो भी नहीं चाहती। और जैसा अभी एक पैनलिस्ट ने कहा, मेरे को लगता है कि स्त्री को देवी बनाकर एक पेडिस्टल पर बिठा दो और उसे गलती करने का राइट भी ना दो, वो भी एक इनह्यूमन चीज़ है। पहले हमें महिला को ह्यूमन बीइंग समझना चाहिए, ना कि देवी। हम उसको बचपन से ही देवी देवी कहकर उसको एक ऐसी जगह पे पहुंचा देते हैं कि उसे गलती भी होती है तो उसे लगता है अरे मैं तो देवी थी, मेरे से गलती कैसे हो गई। तो अब मेरा कहीं ना कहीं मिडिल पाथ है कि वेस्टर्न में भी, और जो इन्होंने कहा कि जड़ में रहने की ज़रूरत है या पीछे से रहने की ज़रूरत है, मैं उससे थोड़ा सा डिफ़र करती हूँ। आज टाइम भी है और मौका भी है कि स्त्रियां सिर्फ जड़ में रहकर सपोर्ट, आज वो पूरा वट वृक्ष बन सकती हैं। आज केवल जड़ में रहने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा पेड़ बन सकती हैं और सारे काम सभी काम कर सकती हैं। और पीछे रह के क्यों, बहुत बहुत हो गया। आज समय है कि हम जहाँ स्त्री पीछे रहे वहाँ पे पुरुष आगे और पुरुष भी पीछे से सपोर्ट कर सकता है। क्यों हम ये नहीं सोचते कि जब स्त्री घर की आगे बढ़ रही है तो एक बार पुरुष भी सपोर्ट करे। क्यों ऐसा होता है कि मैं ही घर का काम करूं और जब ऑफिस में भी जाके या मैं कहीं पे भी काम कर रही हूँ तो मेरी ही क्या ड्यूटी है कि मैं पीछे का सपोर्ट करूं या मैं ही बच्चों को पालूं या मैं ही घर के लोगों को देखूं। जब रोल रिवर्सल हो रहा है पूरे देश में, पूरे मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में रोल चेंज हो रहे हैं महिलाओं के। आज हमसे माना जाता है कि हम घर की कमाई में भी उतना हिस्सा दें और फिर उसके बाद घर आके चाय बनाना और खाना बनाना भी मेरा काम हो। तो क्यों ना हम साथ साथ बढ़ के दोनों काम करें, वेयर मेन कैन सपोर्ट अस एंड वी कैन सपोर्ट मेन। सो अनलेस वी थिंक, थोड़ा सा हमें भी चेंज लाना चाहिए। मनुस्मृति जब लिखी गई थी टाइम अलग था, आज समय बदल गया है और समय के साथ बदलना और फिर अपनी संस्कृति को उस जगह रखना, वो भी केवल संस्कृति काम से नहीं चेंज होती। मैं मानती हूँ हर जगह जहाँ आप जा रहे हो, अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो तो कैसा ड्रेस पहनना है, या किसी ऑफिस में जाके, वो आज नहीं समझती बच्चियाँ, वो भी समझना ज़रूरी है। आप अगर मंदिर में जा रहे हो तो आपको क्या पहन के जाना है। क्यों हम गुरुद्वारे में ही सर ढक के जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं तो अपने मंदिर में क्यों नहीं? क्यों हम गुरुद्वारे में सफाई रखते हैं और अपने मंदिर में सफाई रखने की कोशिश नहीं करते? वो सब चीज़ें भी सोचने की ज़रूरत है। वहाँ पे धर्म की बात आती है तो धर्म के नाम पे भी बात करनी चाहिए। बहुत सारी जगह पर मैं एक चीज़ थोड़ा सा टाइम लूँगी क्योंकि मैंने केरला में बहुत काम किया जहाँ पे फोर्सफुल कन्वर्जन कहूँगी मैं, वो वर्ड नहीं यूज़ करूँगी जिसके कारण आपत्ति हो सकती है। फोर्सफुल कन्वर्जन इन द नेम ऑफ मैरिज वहाँ इसलिए हुआ, लगता है कि हमारी बच्चियाँ खुल के अपने घरों में बात नहीं कर पाती और उनको बताया ही नहीं जाता अपना धर्म के बारे में। जिस धर्म में आप पैदा हुए, आप कैसे एक रॉन्ग प्रॉमिस, गलत प्रॉमिस से आप धर्म बदलना चाहते हो, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम घरों में बताते ही नहीं है कि हमारा धर्म क्या है और हमारे धर्म में क्या कहा जाता है। जबकि बाहर जब हम बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं अरे आप, मैंने एक लड़की से सुना कि मुझे ये कहा गया कि आपके धर्म में तो इतने हजार देवी देवता है, हमारे यहाँ सिर्फ एक है। वो सुनता तो है, आपके यहाँ तो एक दूसरे पे डाल देते हैं। तो ये छोटी छोटी बात पे आप मान भी जाते हो, बच्चियाँ मान भी जाती हैं, अरे एक भगवान है वहाँ तो वो मेरी बात मान जाएगा। और या फिर आप बोलते हो कि हमारे यहाँ पे लड़कियों को प्रॉपर्टी राइट है, ऐसा है नहीं। आपको अगर आप देखें तो वहाँ बहुत कम राइट्स होते हैं जो कि आपको सिर्फ चेंज करने के लिए। और ये इसलिए भी होता है कि जब घर में बात खुल के की जाती कि ये बच्ची है, इसको खुल के बात नहीं की जाती। तो समय बदल गया है, हमें अपनी बच्चियों से खुल के बात करनी चाहिए, तभी वो आपके पास आएंगी क्वेश्चन करने के लिए, चाहे धर्म की बात हो या कोई और अलग बात हो। मैं शुरुआत करूंगी सीनू जी की कुछ बातों से। वैसे वो मेरी बहुत अच्छी मेरी भगिनी है, मेरी बहुत अच्छी बहन है, बट एक बात से मैं असहमत हूँ उनकी एक बात से, जो राइट्स बेस्ड सोसाइटी नहीं थी हमारी, अभी वो बन गई है फेमिनिज्म के नाम पे। फेमिनिज्म
डेफिनेटली वेस्ट से आया हुआ एक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम ये मौका नहीं है उसके बारे में बात करने का, बट यस दिस इज़ नॉट अबाउट राइट्स। ये धार्मिक स्पेस में जो हम महिलाओं की पोजीशन के लिए जो बात कर रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट राइट्स, इट्स अबाउट द पर्सपेक्टिव। रेखा जी ने कहा कि स्त्री और पुरुष में अंतर है ओनली इन द फिजिकलिटीज़। मैं समझती हूँ पर्सपेक्टिव में भी कहीं ना कहीं अंतर है। तो देर इज़ अ वेरी नाइस पर्सपेक्टिव अ फीमेल कैन लेंड टू दिस होल वॉर। मैं इसको वॉर बोलती हूँ क्योंकि वी आर फाइटिंग एन इंफॉर्मेशन वॉर टुडे, वी आर फाइटिंग अ वॉर ऑफ नैरेटिव्स टुडे। सो दिस इज़ अ युद्ध, दिस इज़ कुरुक्षेत्र, एंड आई फील कि इस कुरुक्षेत्र में स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, विच कम्स फ्रॉम देयर डिफरेंट पर्सपेक्टिव देन व्हाट मेन हैव। सो ये बात राइट्स की नहीं है कि हमें हमारे हक के अनुसार हमें धार्मिक सर्कल्स में या इस वॉर में हमें भी फ्रंट लाइन मिलनी चाहिए, ये हक की बात नहीं है। और जहाँ तक बायोलॉजिकल इसकी बात है, शी इज़ बेटर इन्फॉर्म्ड देन मी, मुझे शास्त्रों का इतना ज्ञान नहीं है, तो मैं उनसे असहमत तो नहीं हूँ, बट आई वुड डेफिनेटली want to even learn from her maybe going forward, but I would think that जो भी biological limitations है as a स्त्री, I think she is Shakti enough, she has enough Shakti to deal with those biological issues, but it is not for the men to tell them, decide for them कि because of your biological issues आपको पीछे रहना चाहिए तो आप पीछे ही रहिए। So it is not for them to decide, it is not for the society to decide, it is for the women to make decisions कि कब वो हिस्सा बन सकती है, कब नहीं बन सकती है। So the biological limitations को भी मैं I don't think that should be a constraint for women being given their positions in this Kurukshetra Yuddha. I'm in complete agreement with you, Esther ji. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी राय नहीं रखती क्योंकि मेरी खुद की कोई राय है नहीं। मैं जो शास्त्रों में लिखा है उसका अर्थ समझने और समझाने की प्रयत्न करती हूँ, उतना ही है। तो जब हम फेमिनिज़म की बात करते हैं तो उसका पैरेलल हमारे धर्म में क्या है, तो उसे हम स्त्रीत्वम बोल सकते हैं। इंग्लिश में शायद फेमिनिनिटी, स्त्रीत्वम। तो ये क्या चीज़ है? ये अगेन एक सोशल कंस्ट्रक्ट नहीं है, एक बायोलॉजिकल रियलिटी है। हम जब बात करते हैं कि महिला और पुरुष को एक समान काम करने की आवश्यकता है, तो शास्त्रों में अलग नियम लिखे गए हैं, महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग। इसका कारण क्या है? हाल ही में एक स्टडी हुई थी, एंड यू कैन गूगल दिस, आप सिर्फ गूगल कीजिए विमेन चेस टेस्टोस्टेरोन, ये 3 शब्द, और एक पब्लिश्ड स्टडी की बात कर रही हूँ जिसमें ये देखा गया था कि एक चेस के खेल के दौरान, मैं कोई मैस्कुलिन स्पोर्ट की बात भी नहीं कर रही हूँ, एक चेस के खेल के दौरान बिफोर एंड आफ्टर द गेम उन्होंने जहाँ जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को मेजर किया था। चेस के खेल के पहले टेस्टोस्टेरोन लेवल्स क्या था और उसके बाद क्या था, और द रिज़ल्ट में ये देखा गया कि चेस में जो औरतें हारी थी उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स सेम थे, लेकिन जो जीते उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ गए थे। अब आप सबको पता है टेस्टोस्टेरोन इज़ अ मेल हार्मोन। महिलाओं में भी टेस्टोस्टेरोन क्रिएट होता है, लेकिन ओवरीज को उसे एस्ट्रोजन यानी फीमेल हार्मोन में कन्वर्ट करनी पड़ती है। लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है तो हमारे अंडाशय उस पूरे टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट नहीं कर पाती, और उसका एक परिणाम होता है पीसीओडी। पीसीओडी में हम देखते हैं कि महिला के शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक होती है। तो ये जानते हुए शास्त्रों में लिखा गया है कि स्त्री को कभी भी पैसे के लिए, नाम के लिए या ऐसे किसी एक्सटर्नल रीजंस के लिए काम नहीं करनी चाहिए। अगर करती भी है तो सेवा भाव से, जैसे कि एस्तर जी करती है, उस प्रकार करनी चाहिए
क्योंकि कभी भी कॉम्पिटिटिव या एग्रेसिव जो क्वालिटी है वो टेस्टोस्टेरोन ड्रिवन क्वालिटी है, और जितना अधिक हम पुरुषों के समान एक्सटर्नली दिखने की प्रयत्न करते हैं, उतना ही अधिक हमारे शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है। तो इस जानकारी के साथ नियम बनाए गए थे शास्त्रों में। तो फेमिनिज्म जो है वो बायोलॉजी को बिल्कुल भी नहीं समझती। एक स्त्री को एक पुरुष के बराबर बनाने के लिए क्या हो रहा है? मेंस्ट्रुअल सप्रेशन। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर इक्वल बनाना ही है देन लेट साइंस वर्क ऑन मेकिंग मेन मेंस्ट्रुएट। वो कीजिए आप। व्हाई आर यू मेकिंग विमेन नॉट मेंस्ट्रुएट? तो हमें फेमिनिज्म का एक उसे बाहर रख के जहाँ वो है वहाँ रहने दीजिए, लेकिन हमारी जो भाषा है स्त्रीत्वम का, उसे बायोलॉजिकली समझने की आवश्यकता है, ये मैं मानती हूँ। थैंक यू शिपाली जी। Hello. This is a very, very interesting discussion with very accomplished panelists. And that's why, I mean, this could go on for a long time, but I want to give you all a chance to question. क्योंकि मुझे पता है कि बहुत questions हैं और मुझे काफ़ी सारे हाथ उभरे हुए दिख रहे हैं, तो मैं आपको ज़्यादा समय देना चाहती हूँ, लेकिन मेरी आपसे बस एक विनती है, आप केवल प्रश्न पूछें, ऑब्जर्वेशंस ना दें, अगर हो सकता है तो। आप प्रश्न ज़रूर पूछें और किनसे पूछना है उनका भी नाम ले लें। Anand deserves a prize for asking a question after every session. इक्वल राइट्स चाहिए तो साथ में नहीं इक्वलिटी नहीं चाहिए, फर्स्ट ही चाहिए। मैडम, आई एम डॉक्टर भावना, वर्किंग एट यूनिवर्सिटी। एस्टर जी को एक प्रश्न है मेरा, दोनों को वैसे तो आपने कहा बायोलॉजिकल डिफरेंस का कोई मायने ही नहीं रखता है, ऐसा मैं थोड़ा समझी कि हम लोग वैसे हम लेडीज भी ऐसे ही मानते हैं कि आई कैन वॉट्स एंड शी कैन स्मोक्स एंड शी कैन वॉट्स। समाज भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और हमारे लिए बहुत इतनी सब शायरियाँ और गीतों और सब बने हैं कि जो भी है मैं कर लूँगी, पर ऐसा नहीं है। हमारा बॉडी जो कुदरत ने बनाया है उसकी एक मर्यादा होती है। मर्यादा मीन्स कोई एक उनको मायने रखना पड़ता है, और मुझे पुरुष समूढ़ी नहीं बनना है। स्तरती की स्त्री मतलब लेडीज की जो मेनस्ट्रीम। मैम, आपका प्रश्न क्या है? मैं एक प्रश्न करती हूँ कि एक टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए तो वो स्पोर्ट्समैन का क्वेश्चन तो है ही, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें स्त्री ही रहना है, ऐसा कोई हमें एक कन्विंस कराया जाए, और लेडीज़ के लिए कोई ऐसी ही ट्रेनिंग, ऐसे ही कोर्स, ऐसे ही शिक्षण प्रथा और सब ऐसे ही विचार किया जाए, तो लेडीज़ की जो आंतरिक गुणों की जो एक जन्मजात क्वालिटी है उनको हम बचा पाएंगे। और भारत 2047 में यदि जगत गुरु बनना चाहते हैं तो उसमें एक गुरु माँ की भी ज़रूरत रहेगी, और एक गुरु माँ ही अपने बच्चे को, जैसे मैं शिक्षक हूँ तो मेरे स्टूडेंट में कन्हैया देख रही हूँ, और उसमें कृष्णत्व की और जो एक देवत्व की एक सौजन्य से लालन पालन मैम, आ गया समझ में। क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन ये है कि स्त्री को स्त्री ही रहने देने के लिए हमारे पास कोई एक ऐसा कोई विचारधारा होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो कैसी? अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर के बारे में ही सोचना है। ओके, आप मैं समझ गई। तो सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कही कि बायोलॉजिकल
कोई डिफरेंस है ही नहीं। मैं बोली बायोलॉजिकल लिमिटेशंस जो भी हैं उनके, उससे डील करने की शक्ति नारी में है। वो कंस्ट्रेंट नहीं बननी चाहिए कि वो फ्रंट लाइन पे आने की कंस्ट्रेंट नहीं बननी चाहिए। अगर कंस्ट्रेंट है भी तो वो नारी को डिसाइड करनी चाहिए, ना कि पुरुष को, उस संस्थाओं के पुरुषों को। इतना मैंने कहा। मैंने ये नहीं कहा कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं हैं। दिख तो रहा है तो कैसे मैं नहीं बोलूँ कि नहीं है। सो या दैट इज़ माय क्लैरिफिकेशन। लेकिन ये बायोलॉजिकल डिफरेंसेस महिला को कुछ भी काम करने के लिए रोकते नहीं हैं। ये कोई भी वो कर सकती है। इट इज़ हर चॉइस व्हाट शी वांट्स टू डू, दैट शुड बी हर चॉइस। इफ शी वांट्स टू बी अ होम मेकर, शी कैन बी होम मेकर. If she wants to go out and work, that should be her choice, should not be dictated by the society. That's all. मिशन मंगल को ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए। Anand, I give you 30 seconds to ask your questions. Thank you very much. Really enlightening discussion. Just two questions which I would request to go around the panel. Number one, I'm really fast forwarding and looking at women at 2047. So the first question is, do you support women reservations? And number two, do you support a man who says, I identify as a woman? Do you think that man should be given all the rights that women enjoy? Thank you. Yeah. So I see 2047 where there is no reservation. जहाँ ज़रूरत ही ना पड़े reservation की. Society should be so equal कि कहीं reservation की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए 25 साल आगे. Second question is gender. You are talking about a man can be a woman. That is a personal choice. आप identify अपने आप को women करो, आप man करो. That is a personal choice. So I would not like to comment on that. So to answer your first question, Anand ji, I do not want to wait till 2047. इतनी patience नहीं है कि reservations चला जाए women's के. No, I do not want. अगर मेरे बस में है तो I would want to see reservations go away in the very next year. So the second thing is, yes, like I veto that. It's a personal choice. I would think if a man would like to call himself a woman, then so be it. That is his. Can I throw a caveat there? When you say personal choice, then it's not, because you see a lot of male swimmers have entered the domain of women swimming and they're winning gold medals. So the state has to come in and decide whether it is a personal choice or would the state and other authorities be affected by that choice. So at that point, when the state interferes, at that point I think there are several tests that the candidate has to undergo. So in that test, whatever is determined based on the results of those tests, it would be determined whether the man was lying or not. So ultimately it again comes back to the results of the test and then the biology. Hello, I would like to answer the second question actually. See, as Rekha ji and Esther has both said, that it is absolutely a personal right for a person to identify himself or herself with anything. But that doesn't mean that others are forced to treat that person with the chosen identity. I may choose to think I am an elephant. Can I force you to think I am an elephant? Abhijit, over to Abhijit, who identifies himself as a... So I frequently self-identify as a woman. Do you know the psychological trauma of not accepting somebody's self-identification? I think there's several scientific papers that prove that if you don't accept self-identification, there is significant psychological trauma. Hello, ma'am. Should I ask my question? Yes. Okay. Hi. Here. Okay. Hi, my name is Gungun. I study in the journalism department. Can you hear me? Yes. Yeah. So my question is to all four of you actually. A lot of people even today, even our age, have really orthodox and conservative views. So should we stop and tell everybody that, you have to change your views about women, about equality, or should we just pick our battles and let it be? Because, it's a constant thing that everyone is trying to say that feminism ki zarurat nahi hai, feminism is old now. But should we try to change their views, or should we just tell them ki it's fine, you keep your views and I'll keep mine? It's very confusing.
I think second choice is better. Let them think whatever they want to, but you do your work as you wish to, and go ahead. Thank you so much. Yeah. There There's is a- time. There is time. You can ask at least 2 or 3 questions. I can take more. But questions, no observations. Question. It is a very genuine question which I need answers to personally, madam. कोई बोलता है कि treat us equivalent to men, कोई बोलता है don't treat us equally, कोई बोलता है बच्चों का डायपर बदलो, कोई बोलता है नहीं माता का हक है कि बदले, कोई बोलता है कि काम पे जाना है, कोई बोलता है काम पे नहीं जाना है. I have a simple question. Why don't women get together और हम पुरुषों को बता दो कि बस हमसे क्या expectation है? क्योंकि जो मेंटल ट्रॉमा अभिजीत को हो रहा है अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के साथ, I am a man that identifies as a woman, but I have to undergo post-traumatic stress disorder, having to deal with with women not knowing what they expect of us collectively. You know, Anurag, that is why you should have been here. She I'd like offered to you answer also. that. Yeah, I'd like to answer that. Since you've made this suggestion, why don't you take the lead in bringing together all the women onto one stage? We will happily join the panel discussion. We will pull each other's hair. I mean, we'll do whatever it takes to arrive at a conclusion on a consensus, and then we will publish it. But why don't you take the lead in bringing together all the ladies of this country? Anurag, each one to his own. What your wife says, follow her. और मैम ये भी कह सकते हैं कि और ये भी कह सकते हैं मैम आप वो सब कीजिए जो एक महिला कर सकती है, आप वो सब कर सकते हैं, तो then that is also fine. Any more Hello, questions? I'm Dr. Ranjana Bingani. Just I want to know what will be the place of woman at 2047 while taking a responsibility along with the family duties. Because I want to just say that women are the creator of man, not only man of the universe. So if we don't take care of the coming generation and we are talking only about the women rights and women equalities, what will be our role at that moment when the coming generation, what the generation we are going to give to our nation in the coming period? Just I want to know how the dual duties can be taken up, because we know that कि घर के आदमी काम करने जा रहे हैं, मैं भी काम करती हूँ, but when I reach home, I have to take over all the responsibilities that I have left at the morning when I came to the universities. It's true. If our kids are sick, it's the mother who is going to take care of the. At that moment, we are not talking about the rights. कि ये मेरी rights नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, मेरे husband को मेरे बच्चा देखना है. Because we are women and we are the creator of this universe, and we don't need the right. We don't need the right of equalism with man and woman, because we are the one that man cannot do. Hello. May I ask? Yeah. Anybody wants to answer to that? Hello. Or she can ask. Go ahead. Ask. Okay. Namaste, ma'am. My name is Shivani Tiwari from Department of English. My question is from all of you. बिहार में अभी ही सशक्त बेटी समृद्ध भारत का एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें एक आईपीएस महिला आई, हरजीत कौर, मैं उनका नाम भी लूँगी, और ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों ने सवाल किया कि मैडम एज अ आईपीएस वुड यू लाइक टू फ्री पैड टू अस, एंड शी इज़ लाइक द आंसर केम फ्रॉम कल को कॉन्डम्स भी फ्री मांगोगी तो देंगे क्या. दिस इज़ द आंसर व्हाट वी एक्सेप्ट. और एज अ गर्ल, कल को जब ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां बात करने में या सोचने में बड़ी महिलाओं से जो पढ़ लिख कर आज एक अच्छे स्टेज पे हैं, ऐसा सोच के ऐसा जवाब देंगी, तो क्या हम सोचने से पहले या बोलने से पहले कतराएंगे नहीं? और क्या ऐसा होना चाहिए कि जैसा मैम स्कॉटलैंड पहली कंट्री बनी जिसने मेनिस्ट्रेशन की जितनी भी चीज़ें थी उसे फ्री दिया गया, तो ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां, हम तो शहर में रहते हैं, ठीक है, कैसे भी करके कुछ एडजस्ट होगा, लेकिन उनका जो सवाल था और एज अ आईपीएस महिला उन्होंने जो जवाब दिया, उस पर उनसे सवाल नहीं होने चाहिए थे?
उनसे हुए मैं यहाँ बैठी हूँ जिन्होंने सवाल किए थे, और उन्होंने एक माफ़ीनामा लिख के भेजा था कि मुझसे गलती हुई और मैंने इस सेंस में नहीं बोला था, वो बात अलग है, लेकिन गलती मानी थी और माफ़ी भी मांगी थी उन्होंने। तो उनसे जवाब भी पूछे गए थे और पूरे भारत ने पूछे थे, और वो गलत थी। और मैं फिर से बोलती हूँ कि वो गलत थी जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया, और बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन किया था उनसे। तो मैम ऐसा होगा कि हमें भी कभी वो मौका मिलेगा कि मेंस्ट्रुएशन के जो भी प्रोडक्ट फ्री हैं स्कॉटलैंड में, वैसा कुछ 2047 तक वुमेन के लिए किया जाएगा? थैंक यू। ऐसा होना चाहिए एंड वी शुड वर्क टुवर्ड इट। Any more questions? Okay, last one question, okay? I think the next panelists are already here, so last question. Okay, two questions, one from this row, one from this row. Nobody has asked from this row. Okay, I'll have to be fair. You can take the discussion afterwards, please. I'll have to finish it, just two people. Okay, so I'm Vishwajit. I handle a page on Instagram called Itihas Chakra. I'm a student of Agama Shastras. So my question is specifically to Sinuji, as there was a lot of importance stressed on the involvement of women in dharma. I'd like to know your opinion about the revival of ancient traditions of yoginis and the rich traditions of rishikas which we had, like Gautami, Gargi, Vagamrini. All these were ancient scholars in our Vedika times, and even coming to the Agamic and Tantric traditions, we have a lot of importance given to women. Even it's preferred that we have a Stri Guru, other than a male Guru. A Stri Guru is preferred. So is there any chance or any way through which we can revive this rich tradition of the involvement of women in Dharma? I don't think that can be done by anyone who's not a guru. Because whatever you're talking about, that can only come through Diksha given by a guru. Not random people can't make that decision. It's not a policy decision to be taken. And as far as Gargi, Maitri and all of them who are repeatedly named, and I'm sure they would be, again I'm called and they would be making their presence known. So there was never any restriction on the Jnana Kand. Everyone, regardless of gender and varna, had access to the knowledge base. The restrictions were on the karma kand, performance of certain things, that too for women of menstrual age because it impacts their reproductive health. So Gargi, Maitri, they were all talking, they were having vad, samvad, there was debate. That is where they are mentioned. So citing them and saying, therefore women can chant Vedic mantras is incorrect. Then there were two categories. We had Brahmavadinis and we had Sadyovadus. Brahmavadinis who took to studying Brahma Vidya did not marry. Those who married were called Sadyovadus. Why did we need this two categorization? That itself speaks volumes. When women start getting into intense spiritual sadhana, their reproductive processes are impacted. So if they became Brahmavadinis, marriage, samsara, those things would not happen both biologically as well as emotionally. That is why they had the category. Then there were Rishikas. If you must become a Rishika, you should be married to a Rishi. That is the fundamental thing. Because Vivaha was not about signing on a certificate. Vivaha एक संस्कार था जिसके थ्रू पुरुष और स्त्री में शिव और शक्ति का बीज बोया जाता था और उनके पूरे एनर्जी को एक कंप्लीट सर्क्यूट के रूप में इट वाज टाइड. So if the man was spiritually evolved, if he was a rishi, the woman could become a rishika. So these are all subtle differences. And of course in Tantra there is a complete separate thing. But वो सब एक गुह्य विषय है and it is not something to be casually debated. But this is not a decision that can be taken by one who is not a guru. Right? And I'm sure you already know that. Last question and please be quick. My name is Umesh Bhatt, a national awardee teacher. My question is that one of you told that about religious duty.
religious power. So far as my knowledge is concerned, in Pune, religious activities like a Gayatri Yagna is performed by ladies, right? So it is something to think. It's a thinking matter. Second thing is that in 21st century, women are, unless women ask that what about our power? If this question is not there, so this discussion is out of place. Women empowerment. What's the question, sir? My question is that religious duty is still going at Pune. My point is that performed by the women. Yeah, but what's your question? My question is that empowerment, where you are talking about empowerment, women empowerment, my point is that unless and until the men ask, what about our power, what about our empowerment, then this discussion is out of place, I think. So this is not a question, you're making an Stay. observation. Yeah, you're making an observation, I got that. Okay. Women No, don't I'm sorry. women don't require empowerment. They don't I'm sorry. require empowerment. I'm sorry, ma'am. I have to wrap up now. I have been told that the next session is about done. I'm sorry. I can't take any more questions. You can meet the speakers afterwards and ask any questions that you have. Thank you very much. I cannot take any more Thank you so questions. Thank you. much. And जैसा एस्थर जी ने कहा कि man's world, I can relate to it. Being an army officer, my first posting Pakistan-Rajasthan border, 350 men, 350 वहाँ पे जवान और officers थे. I was the only woman officer. I faced that situation, and I'm sure हम में से सभी महिलाओं ने कहीं ना कहीं ये situation ज़रूर अनुभव की है. लेकिन जैसा कहा मैम ने कि शक्ति तो केंद्र है जिसकी शिव भी आराधना करते हैं. So I think it culminates into it. So thank you so much speakers for this enlightening session. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. तालियों की गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद करेंगे हमारे speakers का. Thank you ma'am. Thank you.